Hello, friends. A very hearty good afternoon to you all. Let's welcome you all to the Unacademy Gate CCH channel, a one-stop solution for all your gate and ES related problems. तो कैसे हो मेरे फ्रेंड्स? आई होप हमेशा की तरह सब मस्ती में होंगे, सब मजे में होंगे, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम पढ़ भी रहे हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए फ्रेंड्स पढ़ने वाले अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा मतलब नेक्स्ट चैप्टर नहीं, इसको ये कंप्लीट करते हुए पहले हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, तो इस वाले टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। ठीक है, मैंने इसको प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस क्यों बोला फ्रेंड्स, जबकि हमने तो पहले ही पढ़ लिया है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, क्योंकि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना फ्रेंड्स, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि मैं दिखाऊंगा वेंचुरी मीटर, वो जो हम लोग देखेंगे ना फ्रेंड्स मेथड, वो हम पहले ही लगा चुके हैं फ्रेंड्स। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है, हम लोग डिस्चार्ज जो मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो सब आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास विद हाई इंटेंसिटी एंड हाई एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, so as you all know, my name is Ashish Kumar and I have done in my BTech in civil engineering from ITBHU. I have qualified GATE 2021 and the subjects that I am specialized in are strength of materials, open channel flow, geotechnical engineering, fluid mechanics, highway engineering and hydrology. My friends, the code that you have to use in order to get an extra 10% off on our Unacademy Plus subscription is ACOMAR 10. Then the benefits of our Plus subscription is you will have access to live classes, crash courses, weekly tests. Every fourth class we have one doubt solving class. Batches are in English and Hindi. Then we have rank improvement batches. And the benefits of Iconic is that you will get all the benefits of Plus, as well as you will get a personal coach, study planner, study booster sessions, personalized test analysis, dedicated doubt clearing instructors, and preparatory study materials. Then in Unacademy Ask a Doubt, you can ask unlimited doubt friends of whichever topic you have our educators would be there to give you the solution in English as well as in Hindi, that too in HD quality. Then the cost of our Plus subscription is as visible on your screen. Okay? These are the costs for 12, 18 and 24 months. And if you are not able to pay all at once, you can opt to pay these monthly fees for your subscriptions. Okay, friends? And for extra 10% off, I guess you know the code by now, that is ACUMAR 10. And for Agonic subscription, these are the respective costs of 12, 18 and 24 months. And if you're not able to pay all at once, you can choose to pay these monthly fees for your subscription. And for extra 10% off, the same code that you know, ACUMAR 10. Then as we have been telling you that the Unacademy Gate and ESC prices are going to be hiked very soon, friends. So don't wait for the prices to get hiked and go take your subscription now. And for extra 10% off, the code that connects me and you is ACUMAR10, that you need to use that. And the Arohan Gate and ESC 2023 batches for GATE and ESC 2023 will be starting from 6th October, means it has started from 6th October, friends, and it will be in, you can see, English as well as Hindi, means bilingual. And here our top educators would be teaching you, friends. So don't forget to make use of this opportunity, friends, for your GATE and ESC 2023, who will be because here our top educators would be coming to make your basic strongs. Okay? And the languages will be both in English as well as Hindi. We will be starting, we have started with irrigation engineering by Dushyant sir at 7:15 a.m. Okay, friends? And to enroll in this batch, you need to use this code ACUMAR10. Okay, friends? So go and take part in this batch, enroll in this batch if you have not done until now. Why? Because uh, this batch has already started from 6th October and today is 9th. Okay, friends? Then Unacademy Gate and ESC Combat, you can see that on every Sunday. Okay? These are the dates of each Sunday. Okay? On every Sunday at 11 a.m. Put your reminder and set your reminder and be ready to give the Unacademy ESCA and Gate Combat, the benefit of which will be that you will get offer in your subscription. If you score good rank, you can get even 100%, 75, 25. These all percentage
offer you can get in your subscriptions. ठीक है friends, so don't forget to give this test. It will be only of 60 minutes and you will have 20 questions. And to enroll in this test you need to use this code akumar10. The test will be completely free of cost. ठीक है friends, so let's start our today's class friends. Let's start our today's class friends. Let's start our today's class. तो आज की क्लास में पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स हमने कहाँ तक पढ़ा था। थोड़ा सा हम पिछले क्लास का रिवाइज करके चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस से, ठीक है। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखे थे, वो तो सबको आता ही है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट एप्लीकेशंस। टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट एप्लीकेशंस। हम लोग आज क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ये देखने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन। उसमें हमने पहला वेंचुरीमीटर उस दिन देख लिया था, उसके क्वेश्चन लगा लिए थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि अगर हमें डिस्चार्ज निकालना है तो वो डिस्चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे वेंचुरीमीटर का आर सही नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, लेट्स मी करेक्ट दैट। ओहो बहुत डार्क है, ठीक है। तो जो हमारा वेंचुरीमीटर है उसका हमने देख लिया था एप्लीकेशन फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था फ्रेंड्स कि अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हम वेंचुरीमीटर जो रहता है उसको उसके थ्रू ऐसे वो थ्रोट रहता है वेंचुरीमीटर में, तो रिड्यूस हो जाता है सेक्शन, उसकी वजह से एरिया रिड्यूस होती है, वेलोसिटी बढ़ जाता है और प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। उस प्रेशर ड्रॉप को मेजर करके हम लोग क्यू निकालते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्यू निकालते हैं। और फिर हमने देखा था कि जो लेवल डिफरेंस है वो इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पीजोमेट्रिक हेड होता है। और फिर हमने क्यू थियोरेटिकल क्यू एक्चुअल निकाला था यहाँ से। और फिर हमने लॉसेस देखा था, जैसे वेंचुरीमीटर में लॉस किस वजह से होता है। एक हमने देखा था डाइवर्जेंट सेक्शन, एक हमने देखा कन्वर्जेंट सेक्शन, ठीक है। और फिर हमने देखा कि कई बार क्वेश्चंस में हेड लॉस दिया रहता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फिर उसमें हम लोग सीडी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज वेंचुरीमीटर में ही पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा था फ्रेंड्स कि हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, पीजोमीटर के थ्रू प्रेशर डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। अब आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि हम जो प्रेशर मेजर करते हैं ना फ्रेंड्स, वो हम लोग जब डिफरेंशियल मैनोमीटर से प्रेशर मेजर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? मैं देख रहा हूँ चैट, साथ में देखते रहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे अगर हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट यूज करते हैं तो फिर क्या होगा हमारा पीजोमेट्रिक ये डिस्चार्ज, ठीक है। So let's draw first draw a venturimeter, ठीक है। This is a venturimeter friends, ठीक है। This is a venturimeter, ये उसका सेंट्रल लाइन, ठीक है। और फ्रेंड्स पिछले क्लास में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी बताया था, वो हम आज यूज करने वाले हैं, इसलिए वो रिलेशन मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आज हम लोग वो रिलेशन इस चीज में यूज करने वाले हैं, तो लेट्स सी दैट रिलेशन क्या था। थोड़ा ज्यादा पीछे तो नहीं, वरना मैं खुद से बोल ही दूंगा कि क्या है वो। बर्नौलीज इक्वेशन, ये हमने बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव किया था, उस पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। कहाँ गया फ्रेंड्स? हाँ, कि पीजोमेट्रिक, अरे कहाँ गया, पीजोमेट्रिक हेड इज कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट स्ट्रीमलाइंस। आज इस चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये पॉइंट दिमाग में बना के रखना, ठीक है। और वैसे भी अगर मैं इस पे नहीं भी फोकस करता हूं तो ये सब पॉइंट्स जो मैं बोलता हूं ना फ्रेंड्स आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ऑल दिस पॉइंट्स शुड बी इन योर माइंड ऑलवेज, ठीक है। तो कहाँ हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम बना रहे थे हॉरिजॉन्टल पीजोमीटर। ये फ्रेंड्स पेन वर्क नहीं कर रहा लग रहा है, चालू हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे जब हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर जहां पे हम लोग पहले पीजोमीटर से हेड देख रहे थे, यहाँ मैं जो हेड डिफरेंस देखूंगा
वो मैं डिफरेंशियल मैनोमीटर के थ्रू देखूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डिफरेंशियल मैनोमीटर के थ्रू देखूंगा। ये हो गया मेरा एक मैनोमीटर, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है। ठीक है, मान लो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे ये 0.1 है, ये 0.2 है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मान लो ये 0.3 है और ये 0.4 है। ठीक है, ये 0.4 है। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रेशर 0.2 पे ड्रॉप हो जाता है। क्यों? वहां की एरिया हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हाई प्रेशर और इधर ये लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रेशर है 1 पे हाई रहता है। क्यों? क्योंकि उधर वेलोसिटी कम रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा इसको पूरा ड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा डिफरेंशियल मैनोमीटर। और ये इसमें लिक्विड भरा है ऑफ, ये जो लिक्विड भरा है वो किसका है? ये लिक्विड भरा है G2 डेंसिटी का, G2 स्पेसिफिक ग्रेविटी का, और इसमें से मान लो फ्लो कर रहा है G1 स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं प्रेशर वाला, वो क्या लिखते हैं? प्रेशर एट 3, जब नीचे जाते हैं तो ये हम लोग ऐड करते हैं, तो G1 गामा W इंटू ये मान लो X। ठीक है, और ये H। ठीक है, और ये ऐसे y मान लो। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे y मान लो, और हमें डेटम की जरूरत पड़ने ही वाली है, तो इसी लाइन को मैं डेटम मान लेता हूं। ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस एज दी डेटम लाइन। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा? P3 प्लस G1 गामा W इंटू एक्स, G1 गामा W इंटू एक्स। ठीक है, फिर प्लस G1 गामा W इंटू एच, नॉट G1, प्लस G2 गामा W इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे गए। एक मिनट फ्रेंड्स, ये बताओ पहले, ये मेरे को बताओ कि प्रेशर मेरा इस वाले आर्म में हाई है, प्रेशर इधर हाई है इस वाले आर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेशर इस वाले आर्म में हाई है, तो जो लिक्विड होगा ना, ये थोड़ा सा मैं गलत कर दिया था, ये मेरे दिमाग में अभी स्ट्राइक किया कि तुम ये बताओ फ्रेंड्स, प्रेशर मेरा इस ये 1 वाले में, 1 के पास प्रेशर ज्यादा, तो जो लिक्विड यहाँ पे ज्यादा होगा ना भाई, लिक्विड इस साइड ज्यादा होगा, जो ज्यादा प्रेशर होगा वो पुश करेगा, तो वो यहाँ तक भाई, ऐसे यहाँ तक, वो जो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है तो वो पुश करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे जल्दी से बनाते हैं। आज हमें बहुत सारे नहीं, 2-3 डिवाइसेस देखने हैं और। ठीक है, ऑरिफिस मीटर, एल्बो मीटर, नोजल मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा, ये हो गया मेरा लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी G2। तो लेंथ इसको मैं सही कर लेता हूँ फ्रेंड्स जल्दी से। लेंथ्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? व्हाट विल बी द लेंथ्स? अगर लेंथ को ये मैं मान लेता हूँ ये x। ठीक है, और ये अभी भी h ही है। ठीक है, और वो y। तो P3 प्लस G1 गामा W x। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए। फिर ये सेम लिक्विड और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो मैं यहाँ पहुंच गया। अब ऊपर जाते हैं तो मैंने बताया था माइनस करते हैं, तो माइनस G2 गामा W इंटू एच, माइनस G2 गामा W इंटू एच, माइनस G1 गामा W इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट 2। ठीक है, तो फिर यहां से अगर मैं P3 बाई G1 गामा W करूं, ठीक है, सबको G1 गामा W से डिवाइड कर रहा हूं, प्लस x। G1 गामा W से क्यों? क्योंकि वो लिक्विड फ्लो हो रही है, वो लिक्विड पाइप में फ्लो हो रही है, तो उसके टर्म्स में मैं निकाल रहा हूं। तो P3 बाई G1 गामा W, सबको x G1 गामा W से मैं डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं डिवाइडिंग ईच टर्म, डिवाइडिंग ईच टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई G1 गामा W बाई G1 गामा W, ये क्या हो जाएगा? G1 गामा W x, और यहाँ हो जाएगा माइनस G2 बाई G1 इंटू एच, माइनस G2 बाई G1 इंटू एच। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस G1 गामा W, तो यहाँ बचेगा माइनस y इज इक्वल टू P2 बाई G1 गामा W।
ठीक है फ्रेंड्स। अब एलिवेशन ये डेटम है, ये मैंने बोला ये डेटम है, तो उससे मान लो ये Z3 है और उससे मान लो ये Z4 है। ठीक है फ्रेंड्स, एक Z3 है दूसरा Z4 है। ठीक है, तो उससे अज्यूम कर लो कि एक Z3 है एक Z4 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रिलेशन एक, कि यहां से देखो Z3 प्लस एक्स इज इक्वल टू Z4 प्लस वाई प्लस एच। तो अब यहां से मैं x और y को हटाना चाहता हूं, तो मैं x माइनस वाई निकालता हूं, क्या है x माइनस वाई हो जाएगा Z4 माइनस Z3 प्लस एच। x माइनस वाई इज Z4 माइनस Z3 माइनस Z4 माइनस Z3 प्लस एच। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको चेक करना, ये x3 और ये हमारा हो गया Z3 प्लस एक्स और इधर से Z4 प्लस वाई प्लस एच। ठीक है, तो x माइनस वाई हो जाएगा, हमने सही तो किया है ना फ्रेंड्स, ये प्लस Z3 आना चाहिए फ्रेंड्स, इसको कुछ यहाँ पे एम्बिग्विटी है, यहाँ प्लस Z3 आना चाहिए। ठीक है, वहां हमारा प्लस Z3 आना चाहिए। और सबसे पहले तो ये तो P4 है, इसको सही कर लो, ये तो P4 है। ठीक है, दिस इज 0.4 सो इट इज P4। ठीक है, और एक मिनट फिर से इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा ये माइनस Z3 है फ्रेंड्स, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं, सही है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू Z4 माइनस Z3 प्लस एच। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू Z4 माइनस Z3 प्लस एच। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को यहाँ लिखता हूँ x माइनस वाई को प्लस Z4 माइनस Z3 माइनस P4 बाई G1 गामा W माइनस G2 बाई G1 इंटू एच, और एक h बचा था इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं लिखूंगा P3 बाई G1 गामा W माइनस Z3, ठीक है, माइनस P4 बाई G1 गामा W माइनस Z4 इज इक्वल टू G2 बाई G1 माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, G2 बाई G1 माइनस 1 इंटू एच। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या है P3 बाई G1 गामा W। व्हाट इज P3 बाई G1 गामा W? अगर मैं पीजोमेट्रिक हेड एट 3 लिखता हूं फ्रेंड्स, पीजोमेट्रिक हेड एट 3, ठीक है, पीजोमेट्रिक हेड एट 3, पीजोमेट्रिक, इसको थोड़ा सा सही कर दूं एक साथ, पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड एट 3, ये कितना हो जाएगा P3 बाई G1 गामा W, ये हो गया प्रेशर हेड P3 बाई G1 गामा W, और एलिवेशन क्या है -Z3। क्यों? क्योंकि डेटम के नीचे है, और मैंने डेटम देख लो कहाँ एज्यूम किया, इधर, और Z3 उसके नीचे है, इसलिए एलिवेशन हेड -Z3। सिमिलरली पीजोमेट्रिक हेड एट 4 जो है वो P4 बाई G1 गामा W, और ये भी हमने डेटम के नीचे लिया है, इसलिए -Z4। यहाँ पे देखो हमने डेटम के नीचे लिया है। ठीक है, तो ये हो गया पीजोमेट्रिक हेड एट 3 माइनस पीजोमेट्रिक हेड एट 4 का डिफरेंस। ठीक है, और इसी को फ्रेंड्स, क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज दिस थिंग्स सिमिलर टू, यहाँ पे देखो कि piezometric head at 3, piezometric head at 3 is equal to piezometric head at 1, piezometric head at 1। ठीक है, piezometric head at 1, similarly piezometric head at 4 is equal to piezometric head at 2। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, स्ट्रीमलाइंस स्ट्रेट है, स्ट्रीमलाइंस स्ट्रेट है, तो उसके परपेंडिकुलर पे पीजोमेट्रिक हेड कांस्टेंट रहता है, ये मैंने बताया था, और ये मैंने आज आपको लेक्चर के शुरुआत में दिखाया भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं लिख सकता, इसका रीजन लिख लेते हैं ब्रैकेट में, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रीमलाइंस, स्ट्रेट स्ट्रीमलाइंस। ठीक है फ्रेंड, स्ट्रेट स्ट्रीमलाइंस। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे जो P3 और P4 है उसको जो भी 3 वाले टर्म्स है उसको 1 से, 4 वाले उसको 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा कि P3 बाई G1 P1 बाई G1 गामा W माइनस Z1, ठीक है, प्लस P2 बाई G1 गामा W माइनस Z2, दिस इज इक्वल टू G2 बाई G1 माइनस 1 इंटू ये H। ठीक है, और यहाँ पे ये देखना फ्रेंड्स,
बर्नौलीज इक्वेशन से P1 बाई G1 गामा W प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई G2 गामा W प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस Z2। तो हमने देखा था कि जो V1 स्क्वायर ये जो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G है वो हमें क्या देता है, यहाँ पे देखो हमने लिखा है, याद ही रखना, मैंने क्लास में एक बार अभी जस्ट बोला भी था शुरुआत में ही कि जो वेंचुरीमीटर में जो हमें हेड डिफरेंस मिलता है वो पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस मिलता है। दिस इज पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस, ठीक है, दिस इज पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस, ठीक है, दिस इज पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। तो यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से क्या हो जाएगा हमारा कि जो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G है दिस इज इक्वल टू G2 बाई G1 माइनस 1 इंटू एक्स। अब इसको हम लोग Q के फॉर्म में लिख देंगे, तो Q हमारा एक्चुअल अगर मैं लिखूं तो उसमें CD लगा लेते हैं जैसा कि हमें पता है, फिर एक एरिया कैपिटल है एक एरिया स्मॉल है, रूट ऑफ कैपिटल A स्क्वायर माइनस स्मॉल a स्क्वायर, और यहाँ पे जो रूट 2G आता है, रूट ये H है, जो रूट 2G आता है उसको मैं कैपिटल H लिखूंगा, वेयर कैपिटल H इज इक्वल टू G2 बाई G1 माइनस 1 इंटू H, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से ये आया कि हमने क्या देखा, यहाँ पे कुछ नहीं, हमने सिंपली ये समझा था कि यहाँ पे ये जो रहता है ये H ये पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस रहता है, और पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस हम डिफरेंशियल मैनोमीटर के केस में हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने अभी जस्ट देखा, मैंने यहाँ पे प्रेशर इक्वेशन के टर्म्स में, जैसे प्रेशर वाला हम लोग यूज नहीं करते थे वैसे निकाला, हम लोग बिना उसके भी निकाल सकते थे फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरी बात, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, क्यों, क्योंकि हल्का हल्का ये प्रेशर के टर्म्स को ही हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस बोला था, ठीक है फ्रेंड्स। बट उसको दिमाग से निकाल देना, वो मैंने खाली आपका अटेंशन कैच करने के लिए बोला था कि आपका क्लास में ध्यान बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फोकस बात क्या है, मेन किस बात पे फोकस करना है कि जो एक्चुअल क्यू है वो यहाँ पे H पे हम लोग पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस रखते हैं, और पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस जब हमारा ये डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं वो ये हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि कई बार हम लोग इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर यूज करते हैं, वेंचुरीमीटर हम लोग कई बार इंक्लाइंड यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इंक्लाइंड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग मेजर करेंगे, यहां से जब हम लोग मेजर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, यहां पे जब मेजर करेंगे तो मान लो यहाँ पे भी ये ऐसे नीचे मान लो, ये ऐसे ऊपर, और इसको ऐसे भर देना, ठीक है, इसको ऐसे कंप्लीटली फिल कर देना, ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लीटली इसको फिल कर देना। तो यहाँ पे भी ये लेवल डिफरेंस H है मान लो, तो यहाँ पे भी जो 0.1 और 0.2 पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस जो आता है वो यहाँ पे भी, भले ये कितने भी एंगल पे हो, थीटा कुड कैन बी एनीथिंग, फॉर एनी थीटा पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस इज इक्वल टू G2 बाई G1 माइनस 1 इंटू H, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इंक्लाइंड हो, उसमें अगर हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाए हैं तो हमें पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस यही मिलेगा, ठीक है। और अगर पीजोमीटर सिंपली लगाए हैं तो वो तो हमें H दे देता है। और एक लास्ट है जब हम लोग इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं, ये लास्ट देख लो, इसी में इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज कर रहे हैं हम लोग अब, ठीक है। यहाँ पे एक इन्वर्टेड के लिए ये आर्म ओपन कर दो और एक ये आर्म ओपन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ये हो जाएगा हमारा ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, प्रेशर इधर का ज्यादा है, ये इस वाले साइड का है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं
तो ये प्रेशर ज्यादा है। तो आप इधर बताओ किस साइड ज्यादा होगा, लिक्विड में किधर ज्यादा होगा? क्या वो इधर ज्यादा होगा, मतलब ये 1 वाले साइड लेवल इस साइड होगा कि 2 वाले साइड लेवल उस साइड होगा? वही जो ज्यादा प्रेस करेगा, ये ज्यादा प्रेस किया इसने, तो इधर तक ऐसे बना देते हैं और इसको थोड़ा सा कलर फिल फिर से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगा 1 पॉइंट पे, तो उसने इसको ऊपर पुश किया। तो हमारा फ्रेंड्स क्या बनेगा डायग्राम, इसको रुको, जब फिल करते हैं ना, इसको बढ़ा के फिल करते हैं। ठीक है, ये ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। ये देखो, यहाँ हम आर्टिस्ट बन गए, अननेसेसरीली इसको कलर किया। इतना तक कलर करते हैं, ये हो गया। ठीक है, बस इतना हो गया, और कोई और कुछ नहीं देखना है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। और इसको कंप्लीट कर देते हैं पीजोमीटर को, इसको ये थिन करके। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर, नॉट पीजोमीटर। ठीक है, तो ये जो हेड डिफरेंस है, ये जो हेड डिफरेंस है, ये कितना है फ्रेंड्स? ये अभी भी डार्क है। पहले तो ये डायग्राम खराब कर दिया, रुको फ्रेंड्स, जल्दी सही कर देता हूँ। रियली वेरी सॉरी फ्रेंड्स, इसको जल्दी से सही कर लेते हैं हम लोग। ये ऐसे, तो थोड़ा सा और थिन करो, और यहाँ से ये ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लो यहाँ पे लिक्विड लेवल ये है, यहाँ पे ये है। अब हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, मान लो ऐसे मैंने शो कर दिया फिल हुआ हुआ। ठीक है, ये मैंने ऐसे शो कर दिया, यहाँ पे लिक्विड फिल हुआ है। हमें यहाँ पे मेन कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो लेट्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो ये है ऐसे, ये हेड डिफरेंस मान लो ये एच है। तो यहाँ पे क्या रहता है, पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। यहाँ पे पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस क्या रहता है फ्रेंड्स? पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा? पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस यहाँ क्या रहेगा? वो हो जाएगा 1 माइनस G2 बाई G1 इंटू एच। और G2 G1 क्या है? G2 G1 ये G1 मान लो, और ये G2 मान लो। ठीक है, तो पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस पता चल गया। तो बस Q इज इक्वल टू सी डी ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर रूट 2G H, और H की जगह ये रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया। कौन कौन का सा, कि जब वेंचुरी मीटर में हमने लगाया था, वेंचुरी मीटर में हमने यूज किया था फ्रेंड्स पहला ये पीजोमीटर, इसको 1 2 3 4 नेमिंग कर देते हैं, पीजोमीटर। ठीक है, जब हम लोग हेड डिफरेंस के लिए, तो उसमें डायरेक्ट हमें एच मिल गया था। दूसरा दूसरा हमारा कंसेप्ट था कौन सा फ्रेंड्स? दूसरा ये है जहां पे हमने यूज किया है क्या, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तीसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर इंक्लाइंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल केस, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर इंक्लाइंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल केस। और चौथा इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर, चौथा इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। और ये लुक बेकार लग रहा है, इसको जल्दी जल्दी फिलअप कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये ऐसे मान लो यहाँ तक फिल्ड अप है। ठीक है, ये भरा गया हमारा, और ये यहाँ पे हमारा हो गया वेंचुरी मीटर समाप्त। अब हमें नेक्स्ट जो देखना है अपैरेटस, वो है ये और कौन सा, ऑरिफिस मीटर। नेक्स्ट वी हैव टू सी ऑरिफिस मीटर। ठीक है, तो ये ऑरिफिस मीटर देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। व्हाट इज ऑरिफिस मीटर? ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस मीटर में क्या करते हैं फ्रेंड्स? पहले कहाँ यूज करते हैं? यूज्ड वेयर स्पेस अवेलेबल इज लेस, यूज्ड वेयर स्पेस अवेलेबल इज लेस। ठीक है, जहां पे कम स्पेस अवेलेबल होगा ना फ्रेंड्स, वहां हम लोग ये यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, कि यहाँ पे इतना बड़ा लेंथ हमें चाहिए, वी नीड दिस मच लार्ज लेंथ हियर। यहाँ से ये यहाँ से टेढ़ा हुआ है, तो हमें यहाँ पे इतना बड़ा लेंथ चाहिए वेंचुरी मीटर का मेजर करने के लिए। बट स्पेस का जब स्कैरसिटी हो, मतलब स्पेस हमारे पास कम हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर तब हम लोग यूज करेंगे। और ऑरिफिस मीटर क्या होता है वो देख लो, ये पाइप है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैंने दो सर्कुलर, दो नहीं एक ही सर्कुलर प्लेट है, ये ऐसे इधर पाइप जा रहा है। ठीक है,
और ये हमारा गया है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है, ये जो फ्रेंड्स है हमारा वो एक कुछ ऐसा है, ठीक है। ये बीच में सर्कुलर होल है, दिस इज सर्कुलर होल, ठीक है। और इसको मैं ऐसे, ये यहाँ पे मटेरियल फिल्डअप है, तो यही चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जो सर्कुलर होल है ना, ये वाला पोर्शन, दिस इज सर्कुलर होल, ठीक है। वो वहां पे सर्कुलर होल है। अब डायग्राम को थोड़ा क्लियर रखते हैं, ठीक है, वो है सर्कुलर होल। अब देखो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे अब फ्लूइड पास होगा ना, फ्लूइड वो कैसे पास होगा, वो मान लो फ्लूइड ऐसे जा रहा है और वो ऐसे इसकी वजह से ऐसे होने लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे फ्रेंड्स फ्लूइड हमारा ऐसे होने लगेगा, ठीक है, और फिर वापस यहाँ पे ऐसे अपना नॉर्मल शेप लेने लगेगा। तो देखो ये मेरा है, मान लो यहाँ कहीं है मेरा सेक्शन 1, ऑरिफिस मीटर ने क्या किया, जो फ्लूइड फ्लो आ रहा था उसको प्रेस कर दिया, और ये हम छोटे स्पेस में ही यूज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ये है, ठीक है। पॉइंट 1 इसको बहुत छोटे स्पेस में यूज कर सकते हैं, पॉइंट 2 इसने ये देखो फ्लूइड को कैसा दबा दिया। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली पॉइंट है, ये जो रीजन रहता है ना, ये इसको कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। इसको क्या कहते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा, वीना कॉन्ट्रैक्टा। इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज द this is the least area, this is the region of least area, this is the region of least area, least area, ठीक है। हमारा जो फ्लूइड देखो जब ऐसे प्रेस होता है ना, यहाँ पे मान लो ये 1 है, तो जब फ्लूइड प्रेस होता है सर्कुलर होल पे ऑरिफिस मीटर के, तो वो प्रेस होके थोड़ा सा आगे वीना कॉन्ट्रैक्टा देता है, जहां पे एरिया जो रहती है लीस्ट रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं इसको रीजन 2 बोलूं, इफ दिस इज रीजन 2, तो इक्वेशन देखते हैं हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स। इक्वेशन क्या लिखेंगे, P1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस प्लस Z1, ठीक है, इज इक्वल टू P2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, यहाँ पे गामा, यहाँ पे गामा, ठीक है। और और ये मान लो डेटम कुछ हमारा ऐसे है, ठीक है, ये हमारा मान लो डेटम है, ठीक है। तो सेंट्रल पॉइंट की हाइट Z1 और इधर सेंट्रल पॉइंट की हाइट Z2, और वो लग सेम ही रहेगा Z1 Z2 तो लगभग, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्या लगा दूं, पीजोमीटर्स, ये यहाँ पे एक पीजोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको क्लियर करो, यहाँ पे 2 को, ये 2 को हम लोग लिख लेते हैं इधर, ठीक है। और जो हमारा पीजोमीटर है, दूसरा पीजोमीटर यहाँ है, ठीक है। दूसरा पीजोमीटर मेरा वीना कॉन्ट्रैक्टा वाले सेक्शन पे है, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लो लिक्विड का राइज इतना हुआ है, यहाँ अगर लिक्विड का राइज इतना हुआ है, और यहाँ कुछ इतना हुआ है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है वो मान लो कुछ है स्मॉल एच, ठीक है फ्रेंड्स, लेट दैट बी स्मॉल एच। तो ठीक है, ये डेटा मान लिया, ठीक है। और पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ये सेक्शन 1 सेक्शन 2, कोई एलिवेशन मैंने ले लिया किसी पॉइंट का Z1, और उधर उसी साइड दूसरे पॉइंट का Z2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि P1 बाई गामा, P1 बाई गामा प्लस Z1 माइनस P2 बाई गामा प्लस Z2, दिस इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। ये हमारा फिर से बताएगा पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस, दैट इज H, दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई एरिया 2 का स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई एरिया एट 1 का स्क्वायर बाई 2G, ठीक है, बाई 2G। तो यहां से 2GH और A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर इधर चला गया, और यहाँ Q स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। और तो फिर यहाँ से हमारा Q क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द Q, Q विल बी इक्वल टू रूट 2GH A1 A2 बाई रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और यहाँ पे A1 तो जो है हमारा एरिया एट सेक्शन 1 है, A2 इज एरिया एट सेक्शन 2, ठीक है। यहाँ का एरिया A1 और यहाँ जो पतला सा है इसकी एरिया A2।
अब वीना कॉन्ट्रैक्टा हम अब ऐसे वाटर में वहां बैठ के वीना कॉन्ट्रैक्टा देख थोड़ी पाएंगे फ्रेंड्स, वहां हमें वीना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया नहीं पता चलेगा। इसीलिए अगर मैं इसका एरिया तो मुझे पता रहेगा, ये जो सर्कुलर होल है जो मैंने इंस्ट्रूमेंट में लगाया है, मतलब अपने पाइप में लगाया है, तो मुझे ए का वैल्यू पता रहेगा। तो अगर सी सी इट इज कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सी सी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सी सी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मुझे फ्रेंड्स सी सी का वैल्यू पता है, ठीक है, तो जो ए होता है वो होता है सी सी इंटू ए टू, तो यहां से क्यू हो जाता है रूट टू जी एच ए वन ए टू के जगह ए हो गया यहाँ सी सी बाई रूट ऑफ ए वन स्क्वायर माइनस सी सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम लोग याद नहीं करेंगे, वी वोंट लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स, ये हम याद नहीं करेंगे। हम याद कौन सा करेंगे कि Q इज इक्वल टू सी डी ए वन इंटू एरिया ए बाई रूट ऑफ ए वन स्क्वायर माइनस एरिया ए स्क्वायर रूट टू जी एच, हम लोग याद ये करेंगे, ठीक है। और हमने क्या किया कि मेरा इक्वेशन आया है कहाँ एग्जैक्टली, ये सही बात है, ये सी सी के टर्म्स में। बट क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब हम लोग लैब में काम करते हैं ना, तो हम Q और H के बीच एक कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं, तो वहां पे Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू रूट H। तो अब सोचो अगर मैं सी डी ए वन ए लिखा हूं बाई रूट ऑफ ए वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, तो अगर यहाँ सी सी रहता है तो सी सी अलग फ्लो में चेंज होते रहेगा, ठीक है, अलग अलग फ्लो में चेंज होते रहेगा। तो उससे हम ये चीज ऐसा कांस्टेंट नहीं लिख पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देन वी कांट राइट Q इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू रूट H। तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए जो हम लोग काम करते हैं कि Q को यहाँ पे भी पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस रूट H, पीजोमेट्रिक डिफरेंस जो हेड डिफरेंस है उसका H, ठीक है, इज इक्वल टू सी डी ए वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है प्लेट एरिया, ये जो सर्कुलर एरिया होल का एरिया, सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कुलर होल, एरिया ऑफ सर्कुलर होल, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया सी डी ए वन ए रूट ऑफ ए वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट टू जी एच, दिस इज इक्वल टू क्यू, डिस्चार्ज वी ऑब्टेन, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट हमें सी वी जानना है और सी सी जानना है, ठीक है, ये जो कि एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हम एक बार देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, और ठीक है ये हम देखना चाहेंगे किसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू। और यहाँ पे एक ये बात समझ लो कि सीवी होता है, सीवी होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। हम ये पार्ट फिर से देखेंगे, ये अभी हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी सीसी खत्म नहीं हुआ है, ये मैं क्वेश्चन के थ्रू और क्लियरली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वी विल कंटिन्यू इट वंस अगेन। यहाँ पे बस इतना समझ लो कि जो ऑरिफिस मीटर है कहाँ यूज करते हैं, जहां स्पेस कम हो, ठीक है। A2 क्या है, A1 क्या है, A क्या है, ठीक है। पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस H है, तो उससे जो Q मेरा ये आता है, बट ये मैं लिखूंगा नहीं, ना ही याद करूंगा। मेरा Q जो मेन है वो ये है, उसमें CD क्या है मुझे पता है, CC होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और अभी CD और सॉरी CV और CC पे हमारा चर्चा बचा हुआ है, ठीक है। CC और CV पे हमारा डिस्कशन अभी लेफ्ट है, इसके लिए परेशान मत होना, ये मैं बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, डोंट वरी, आई विल टेल यू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग समझते हैं कि ऑरिफिस मीटर खत, और उससे पहले इसके लिए CD की जो वैल्यू रहती है वो 0.6 के आसपास रहती है, ठीक है। जो ऑरिफिस मीटर है उनके लिए CD की वैल्यू नियरली अप्रॉक्स 0.6 रहती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा बस एक पार्ट बचा है कि CD CC CV, इन तीनों को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे इन द केस ऑफ ये ऑरिफिस मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट अब ऑरिफिस मीटर को रहने देके अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कि ये नोजल मीटर, ठीक है। ये मेरा अब नोजल मीटर, मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, जो CD CV CC है हम लोग डिस्कशन करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट फ्रेंड्स हम लोग यूज करने वाले हैं वो है नोजल मीटर। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये अगर मेरा पाइप है, अगर ये पाइप है, दिस इज अ पाइप, ठीक है।
तो यहां से हम लोग एक ऐसे ये पास कराते हैं, ऐसे ये पास कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एक नोजल ऐसे पास कराते हैं और इसमें ये मान लो ये ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये ऐसे फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा जब फ्लूइड फ्लो करेगा फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे क्या होगा, और ये क्यों यूज करते हैं ये भी देखते हैं। ये जो फ्लूइड मान लो ये ऐसे अब इधर ऐसे गाइडेड फॉर्मेट में जाएगा, ये ऐसे इधर अब गाइडेड फॉर्मेट में जाएगा, ये इधर ऐसे अब सिमिलरली इधर ऐसे ये गाइडेड फॉर्मेट में जाएगा और ऐसे जाके बाहर जाने लगेगा। ये मान लो कुछ ऐसे स्ट्रेट चला गया ऐसे टाइप का। ठीक है, तो नोजल मीटर में क्या हुआ कि इधर हम गाइड करते हैं फ्लूइड फ्लो को, इधर हम लोग गाइड करते हैं, जो ये वाला रीजन था यहाँ पे ऑरिफिस मीटर में इधर गाइड नहीं करते थे फ्रेंड्स। तो इधर देखो यहाँ पे ये जो इतना रीजन है, ये हमारा जो ये वाला रीजन है, ये जो ये रीजन है यहाँ, और सिमिलरली ये वाला रीजन, ये वाले ये पेन वर्क नहीं कर रहा, हाँ ये वाला रीजन, ये सिमिलरली यहाँ पे फ्लो सेपरेट हो जाता था, एडिस फॉर्मेशन होता था, इस वजह से लॉस इधर बहुत ज्यादा हो जाता था। इधर एडिस फॉर्मेशन की वजह से इधर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए इधर जो सीडी रहता है जो वेंचुरी मीटर में 0.98 था, क्योंकि हमने उसको थोड़ा कंट्रोल कर दिया था कॉन्ट्रैक्शन, धीरे कॉन्ट्रैक्शन देके 6 डिग्री पे, बट इधर सडन कॉन्ट्रैक्शन है तो एडिस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होते हैं, इधर लॉसेस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इधर जो कोफिशिएंट है सीडी कोफिशिएंट, ठीक है, उसको हमने क्या लिखा है, डिस्चार्ज कोफिशिएंट सीडी यहाँ पे 0.6 बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एडिस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। और वही चीज इधर, इधर हम लोग गाइड कर रहे हैं, सडन चेंज नहीं हो रहा है, तो इधर एक तो लॉस कम होगा 0.1, दूसरा ये कम स्पेस ले रहा है। तो अब इसका पॉइंट देखो, यहाँ नहीं इस साइड लिखते हैं फ्रेंड्स, इसको इस साइड लिखते हैं, used when space available is less, space available is less, space available is less। दूसरा used when head loss desired is less, head loss desired is less, जो head loss हो रहा है वो कम हो, कि जो हेड लॉस हो रहा है वो कम हो, जो कि हमारा ऑरिफिस मीटर में बहुत ज्यादा हो रहा था। वी वांट कि जो नोजल मीटर है उसमें हेड लॉस बहुत कम हो। तो और क्या लिखे कि द नोजल ऑफ नोजल मीटर guides द फ्लो, गाइड्स द फ्लूइड फ्लो। ठीक है, फ्लूइड फ्लो। ठीक है, तो यहां क्या रहता है फ्रेंड्स कि जो कंप्रेस होगा ऐसे वो बहुत कम होगा, ये जो कंप्रेस होगा ऐसे बहुत कम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो नोजल मीटर में क्या होगा, हमारा ऐसे जो लॉस हो रहा है वो बहुत कम होगा, सडन चेंज नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, नो सडन चेंज, यहाँ पे नो सडन चेंज, इस वजह से यहाँ पे लेस लॉस। ठीक है, ड्यू टू दिस लेस लॉस हैपेंस, ड्यू टू दिस लेस लॉस हैपेंस। ठीक है, तो अभी इसका इक्वेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका इक्वेशन भी कुछ नहीं, अगर मैं यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ और एक यहाँ लगा देता हूँ, नॉट यहाँ पे नहीं, अगर मैं यहाँ पे किस सेक्शन पे लगाऊं, एक इस वाले सेक्शन पे लगा देता हूँ। ये जो नोजल मीटर की ये जस्ट आउटलेट है, ये एक ये और एक यहाँ कहीं, तो इस पे यहाँ पे एक पीजोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पीजोमीटर, इसको ये ऐसे दिस वन लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ ये ऐसे मान लो, सिमिलरली यहाँ ये ऐसे मान लो, ये ऐसे मान लो, ये हाइट h। ठीक है, ये हमारा जस्ट आउटलेट है, यहाँ का एरिया A2, यहाँ का एरिया A1। तो हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन फिर फ्रेंड्स, सिंपली जो हमें याद है, Q इज इक्वल टू CD रूट 2GH A1 A2 रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, जहां पे H है
पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस, जहां पे H क्या है, पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस, वेयर H इज पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और यहाँ पे CD नियरली लगभग 0.97, देख रहे हो ये एकदम बहुत कम लॉस दे रहा है। यहाँ पे CD इज लॉस इज वेरी लेस, जो लॉस है यहाँ पे वो बहुत कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एल्बो ये नोजल मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल्बो मीटर। नेक्स्ट अपैरेटस इज एल्बो मीटर। नेक्स्ट अपैरेटस इज एल्बो मीटर। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग कर्व्ड पाइप लेते हैं, इसमें हम लोग कर्व्ड पाइप लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हियर वी टेक कर्व्ड पाइप्स। ठीक है, curved pipes, curved pipes are there, curved pipes are there। ठीक है, और जो फ्लो होता है फ्रेंड्स, जो फ्लो होता है हमारा वो कैसे होता है कि ये मान लो ये ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे लिक्विड का। ठीक है, तो जो इसमें स्ट्रीम लाइंस मिलते हैं वो सर्कुलर होते हैं। ठीक है, जो स्ट्रीम लाइंस मिलते हैं वो सर्कुलर मिलते हैं। ठीक है, स्ट्रीम लाइंस आर सर्कुलर की जगह कर्व्ड बोलो, स्ट्रीम लाइंस आर कर्व्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और एक पॉइंट ये, अब देखो अगर मैं यहां से प्रेशर P1 बोलूं, यहाँ पे का प्रेशर P2 बोलूं, यहाँ 0.2, यहाँ 0.1। ठीक है, तो P2 minus P1 will be centrifugal into area। ठीक है, into area, this will be equal to centripetal force, centripetal force। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी P2 हमारा ग्रेटर देन P1 होता है, P2 इज ग्रेटर देन P1। तो जो हम लोग बाहर के साइड जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। सो अगर मैं ये जो प्रेशर है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये जो प्रेशर है मैं कुछ तरीके से कुछ मेथड से मेजर कर लूं, इफ आई मेजर दिस प्रेशर समहाउ, ठीक है, ये जो P2 P1 का डिफरेंस है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा फ्रेंड्स, इसके लिए मैं यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे करके इधर ये, ठीक है, और इधर इसको ऐसे ये, ठीक है, और इधर ये, और इधर ये। ठीक है, फिर हम लोग लिक्विड का हेड का डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली उस साइड से प्रेशर ज्यादा है तो ये कम रहेगा और इस साइड ज्यादा रहेगा, तो हमें फ्रेंड्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें फ्रेंड्स मिल जाएगा ये हेड डिफरेंस, यहाँ से हमें ये हेड डिफरेंस मिल जाएगा। इस हेड डिफरेंस को फिर हम लोग देख के Q इज इक्वल टू लिख देंगे, Q इज इक्वल टू CD रूट 2GH और A1 A2 नॉट A1 A2। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कंसेप्ट समझो, यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पे हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया कि सिर्फ एक पाइप ले रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई होल नहीं क्रिएट किया या फिर कोई थ्रोट नहीं बनाया वेंचुरी मीटर की तरह, या फिर कोई नोजल नहीं यूज किया, यहाँ सिर्फ एक एरिया है, हियर वी हैव ओनली वन एरिया। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो है, ये हो गया, हमें सीधे वेलोसिटी दे देता है। यहाँ पे जो हेड डिफरेंस है वो सीधे वेलोसिटी V रूट 2GH, ये हमें सीधे वेलोसिटी दे देता है। तो CD इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ पाइप इंटू एरिया ऑफ पाइप। ठीक है, तो ये हमें दे देगा Q, और यहाँ पे CD लगभग 0.8 से 0.85 रहता है, जो कि क्वेश्चंस में दिया रहेगा। हमें वेंचुरी मीटर का और एक ऑरिफिस मीटर का, ये दोनों का याद रख लेना। बाकी का अगर तुम याद नहीं भी रखते हो ना फ्रेंड्स तो चलेगा, बाकी का अगर तुम याद नहीं भी रखते हो फ्रेंड्स तो चलेगा, बट वेंचुरी मीटर एंड ऑरिफिस मीटर यू मस्ट नो। ठीक है फ्रेंड्स, वेंचुरी मीटर एंड ऑरिफिस मीटर यू मस्ट नो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस खत्म कर दिया। अभी इसमें पाइटेट स्टैटिक ट्यूब और फिर पिटॉट ट्यूब, ये दो बचा है, ये भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे, बट इससे पहले इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोगों को लगेगा मैंने ये बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया है, बट अब ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, इस पे तुम्हारा किस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है, इस पे तुम्हारा जो क्वेश्चंस पूछता है ना फ्रेंड वो थ्योरेटिकल पूछता है। ऑरिफिस मीटर क्या यूज करते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या है, ठीक है, फिर और उसमें जो हमारा रहता है कि ये एक और पॉइंट क्या था,
कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, सीवी क्या होता है, सीसी क्या होता है, फिर नोजल मीटर कहाँ यूज करते हैं, प्रिंसिपल क्या रहता है, ठीक है, ये सब पूछता है। और इसी से नोजल मीटर में एक और पॉइंट, यहाँ पे फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। मैंने बताया था फ्रेंड्स फ्री और फोर्स्ड वॉर्टेक्स क्या होता है, मैंने लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम में बताया था फ्री और फोर्स्ड वॉर्टेक्स क्या होता है। फ्री वॉर्टेक्स में टॉर्क इज टॉर्क इज टॉर्क इज जीरो, फ्री वॉर्टेक्स में टॉर्क इज जीरो, ठीक है, टॉर्क जीरो रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। तो यहाँ पे मुड़ क्यों रहा है, यहाँ पे लिक्विड सर्कुलर मोशन, वॉर्टेक्स मोशन में क्यों जा रहा है, पाइप के शेप की वजह से, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये फ्री वॉर्टेक्स फ्लो रहता है। तो खाली तुम्हें यहाँ पे ये पॉइंट्स याद करने हैं फ्रेंड्स, यू हैव टू ओनली लर्न दिस पॉइंट्स। और जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है हर केस में उसको तो सेम ही रखना है, खाली एल्बो मीटर में हम लोग कुछ थ्रोट नहीं देते हैं, नोजल नहीं देते हैं, या फिर सर्कुलर होल कुछ ऑरिफिस नहीं यूज करते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स वहां पे हम लोग को क्या करना होगा कि वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस रहता है हमारा वो वेंचुरी मीटर से रहता है, और उस पर मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स बताया है। अब हमारा नेक्स्ट बचता है ये पार्ट जो कि है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, जो कि मैंने बोला हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। तो अभी पिटॉट नेक्स्ट पार्ट हमारा पिटॉट ट्यूब स्टैटिक ट्यूब है, वो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस फ्रेंड, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये आज का क्वेश्चन 1 मान लो, ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर विथ इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर्स 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इज यूज्ड टू मेजर फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। एक हम लोग हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर यूज कर रहे हैं, तो हमारा डायग्राम क्या होगा फ्रेंड्स, ये इतना मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और उसके आगे का मुझे जरूरत नहीं है तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे का डायग्राम हमें नहीं देखना है। ये थ्रोट है, थ्रोट की डाया है 15 सेंटीमीटर, और ये है मेन पाइप की डाया, ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे हमें वाटर का फ्लो यानी डिस्चार्ज मेजर करना है, मुझे डिस्चार्ज निकालना है, वी हैव टू फाइंड क्यू, रेट ऑफ फ्लो क्यू, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या है, रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, यहाँ पे हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट किया है, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर एक यहाँ कर लो, एक यहाँ कर लो, ठीक है। तो जगह नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। और जो रीडिंग है डिफरेंशियल मैनोमीटर की वो है 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो रीडिंग है वो है 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, रीडिंग इज 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले हर क्वेश्चन को तुम्हें समझना है क्वेश्चन क्या क्या रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत इजी सा है, कुछ नहीं, सिंपली ऐसे बनाओ, ये इसको फ्रेंड्स ऐसे बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो, अगर हम लोग ये नहीं भी बनाते हैं ना, एग्जाम में फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन लगा के जाना ना कि तुम्हें आ जाए, तुम्हें डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, जब तक बहुत टफ क्वेश्चन ना हो तब तक डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे तैयारी करके जाना। ये बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे, इसको हम लोग ऐसे, ये लिक्विड लेवल को ऐसे हम लोग ये लिक्विड लेवल बना देते हैं फ्रेंड्स, इसको ऐसे ये यार ये फ्रेंड्स ये लिक्विड भरने में बहुत टाइम लग जाता है हमें ये हम ऐसे, इसमें ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी 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 फ्रेंड्स आई गेस सबने देखा होगा, जब कॉलेज में श्रिंकेज लिमिट वाला एक्सपेरिमेंट होता है हम लोग तो उससे खेला करते थे ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, ये दिया है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस डिफरेंस इज 20 सेंटीमीटर, और ये इसको रेड पेन से शो कर देता हूं ताकि क्लियर दिखे, हाँ ये जो हमारा है ये है मर्क्यूरी, तो इसका G2 13.6 है, वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर का जीवन तो 1 है, उसके रिस्पेक्ट में ही सब लेते हैं। यहाँ की डाया कितनी है
30 सेंटीमीटर, यहाँ पे डाया कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एक का 13 सेंटीमीटर, एक का 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग एरिया ए निकाल लेते हैं, कैप स्मॉल ए पाई बाई 4 इंटू 0.15 का स्क्वायर, ये कितना आएगा फ्रेंड्स, पाई बाई 4 इंटू 0.15 का स्क्वायर, 0.15 इंटू 0.15 इंटू पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 0.0167 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, यूनिट पे फोकस करना फ्रेंड्स, मीटर स्क्वायर। और कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए है पाई बाई 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट पिछले वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 का स्क्वायर तो 4, मतलब कर लेना कैलकुलेट, समझ जाओगे 4, ठीक है, 0.07068 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो हम लोग स्मॉल एच निकालते हैं, नॉट स्मॉल एच तो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, जो हम लोग फ्रेंड्स कैपिटल एच निकालते हैं वो क्या होता है, वो होता है G2 बाई G1 माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, G2 नॉट एक्स, जो हमने फॉर्मूला का टर्म याद किया है एच, तो इसको हम लोग एच ही लिखते हैं, ठीक है, लेट्स राइट दिस एज एच। तो हमारा क्या हो जाएगा कि h इज इक्वल टू 13.6 बाई 1 माइनस 1 इंटू 20 सेंटीमीटर को 0.2, तो ये हो जाएगा 12.6 इंटू 0.2, दिस इज 2.52 मीटर, दिस इज 2.52 मीटर। तो क्यू हो जाएगा, सी डी दिया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, सी डी, हाँ, टेक सी डी एज 0.98, टेक सी डी एज 0.98, और अगर सी डी नहीं देता है तो HL देगा, और HL देगा तो हमें सी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस HL बाई H करके निकालना आता है, और वो भी नहीं देगा तो वी विल अज्यूम सी डी एज 0.98, ठीक है, वी विल अज्यूम सी डी एज 0.98, सो Q इज इक्वल टू सी डी ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, तो ये 0.98 इंटू, अब इतने सारे वैल्यूज मैं लिख नहीं रहा हूं डायरेक्ट, चलो लिख देता हूं, 0.01767 था आई गेस, यस, 0.01767 इंटू पॉइंट कितना है 0.07068 बाई इसी का स्क्वायर करेंगे 0.01767 का स्क्वायर माइनस 0.07068 का स्क्वायर रूट 9.81, और हाइट जो मतलब डिफरेंस पीजोमेट्रिक हेड का 2.52 है। यहां से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर, यहां से लेट्स कैलकुलेट इट, 0.01767 का स्क्वायर माइनस 0.07068 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर ये कर दिए, एक मिनट फ्रेंड्स, ये मैंने उल्टा लिख दिया फ्रेंड्स, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया है इसको, ये स्मॉल एरिया है, ये शॉर्ट एरिया है, ठीक है, तो ये हो गया, इसको ऐसे करके रूट ओवर, इसका रूट हो जाएगा फ्रेंड्स पावर 0.5, ठीक है, और ये पावर माइनस 1 इनवर्स इंटू 0.98 इंटू 0.1767 इंटू 0.07068, ठीक है, इंटू रूट 2 इंटू रूट ऑफ 9.81 इंटू रूट ऑफ 2.52, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.628, लगभग 5 है तो लगभग 0.629, 3 डिजिट्स तक आंसर ट्राई करना, गेट में मोस्टली जब वो होता है न्यूमेरिकल वाले, न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले, ठीक है, इंटीजर टाइप वाले, उनमें ये 0.629 मीटर क्यूब पर सेकंड, 3 डिजिट्स तक आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर इसी को कई बार लिख देता है 629 लीटर पर सेकंड, 629 पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। तो this question was nothing here, only you had to learn, only the extra thing that I taught you was how to write piezometric head difference, which you already know from the chapter of pressure measuring devices, which you already know from the chapter of pressure measuring devices, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अब हम लोग देख लेते हैं, मैं टोटल 6 क्वेश्चंस लेके आया था, पूरे 6 क्वेश्चंस हमने लगा लिए हैं कि नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद अभी और क्वेश्चन करना है और फिर हमें वो भी देखना है। अभी अपना अपना टॉपिक कौन सा बचा हुआ है फ्रेंड्स, सीसी सीवी सीडी इन केस ऑफ ऑरिफिस मीटर, सीसी सीडी सीवी इन केस ऑफ ऑरिफिस मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा लेफ्ट आउट है, दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट आउट। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट आउट। तो इसको आज का क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, water is flowing through a pipe of 5 सेंटीमीटर डायामीटर। ठीक है, एक पाइप है ऐसे मान लो, ठीक है, इस पे 5 सेंटीमीटर की डाया है, वाटर फ्लो कर रहा है अंडर अ प्रेशर ऑफ पी मान लो 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एंड दिस इज गॉज, दिस इज गॉज। अगर ये गॉज नहीं भी लिखा रहता ना फ्रेंड्स, मैं इसको मिटा ही देता हूं ताकि तुम समझो गॉज की जरूरत नहीं है हमें, ये गॉज है फ्रेंड्स, दिस इज गॉज प्रेशर। ठीक है, दिस इज गॉज। अगर ये नहीं भी लिखा रहता तो तुम्हें गॉज ही समझना है, सो आई एम रबिंग इट, आई एम रबिंग इट। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं भी दिया रहता है तो तुम्हें गॉज ही समझना है। ठीक है, विथ मीन वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी है, एरिया है, तो क्यू तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, फाइंड टोटल हेड और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। मैंने पहले ही बताया है कि जो टोटल हेड रहता है, मतलब ये जो प्रेशर के 3 फॉर्म्स में एक फॉर्म था जो कि P बाई गामा प्लस वी स्क्वायर बाई 2G प्लस एलिवेशन हेड, ये क्या रहता है, ये रहता है हमारा एनर्जी पर यूनिट वेट। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, ये मैंने बताया है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हेड के बाद और नहीं लिखता तो अभी हमें समझ जाना था, या फिर टोटल हेड की जगह सिर्फ टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट दिया था तो भी हमें समझ जाना था। ठीक है, एट अ फाइंड दिस टोटल हेड एट अ क्रॉस सेक्शन विच इज 5 मीटर अबव द डेटम लाइन। मान लो ये कुछ डेटम लाइन है, दिस इज डेटम लाइन, तो यहाँ से 5 मीटर ऊपर ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। सो व्हाट इज द टोटल हेड। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। सब जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ फ्रेंड्स, सबके सब चैट में मेरे से पहले आंसर कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, एवरी वन ऑफ यू मस्ट आंसर इन द चैट बिफोर मी, बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड आंसर मी इन द चैट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस फ्रेंड्स सॉल्व कराए हैं, स्पेशली इस चैप्टर में तो ये, और एक ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम, उसमें मैंने ईएससी के बहुत सारे क्वेश्चन कराए। तो ये सब चैप्टर बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब चैप्टर बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, सॉरी। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, वीडियो कहाँ, वीडियो चल रहा है, थॉट वीडियो पॉज हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि फाइंड द टोटल हेड और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो हमें क्या करना है, ये बना लिया हमने डायग्राम, ये यहाँ पे ये यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, दिस इज 5 सेंटीमीटर डाया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़िया कर लो यार, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर डाया, वेलोसिटी v इज, आई गेस इट वाज 2 मीटर पर सेकंड, यस इट इज 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट इज 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो डेटम है ये है 5 मीटर, और प्रेशर जो है, प्रेशर है 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और लिक्विड तो हमें दिया ही नहीं है कौन सा फ्लो कर रहा है, लिक्विड दिया है वाटर। तो ये मैं वाटर ब्लू लाइन से शो कर रहा हूँ, दिस इज वाटर फ्लोइंग। ठीक है, तो एक एक टर्म्स जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। P बाई गामा, दिस इज 29.43 न्यूटन 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, बाई गामा कितना हो जाएगा 9.81 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू। इट्स वैल्यू इज 29.43 डिवाइडेड बाई 9.81। ठीक है, और 3 - 4 10 टू द पावर -1, तो ये 30 मीटर आ गया। ठीक है, दिस इज 30 मीटर फ्रेंड्स। तो अब हमारा नेक्स्ट है पी बाई गामा के बाद z, जो कि हमें 5 मीटर दिया ही हुआ है, तो हमें v निकालना है, v स्क्वायर बाई 2g, ये भी तो बहुत ईजी है, 4 बाई 19.62। ठीक है, 4 बाई 19.62 डिवाइडेड बाई 19.62, अरे यार 4 डिवाइडेड बाई 19.62, दिस इज 0.203
0.9 मीटर, 0.2 नियरली ऐसे कर लो 0.204 मीटर, और एलिवेशन हेड इज 5 मीटर, एलिवेशन हेड इज 5 मीटर। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये, या फिर इस, चलो ठीक है लिख ही देते हैं, टोटल हेड इज P बाई गामा प्लस Z प्लस V स्क्वायर बाई 2G, ये 30 है, ये 5 है, और ये 0.204 है। दिस वी गेट एज 35.204 मीटर। दिस इज टोटल हेड, और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट, दिस इज टोटल हेड, और ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट एट द क्रॉस सेक्शन, और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट एट द क्रॉस सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन आई गेस नहीं लेफ्ट है। 2 ये हो गया। वेंचुरीमीटर, इस पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक मैं इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर वाला क्वेश्चन बनाना था फ्रेंड्स, एक इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर का क्वेश्चन बनवाना था आप लोगों से। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पीजो मीटर। अब हम लोग एक देखते हैं ये कौन सा इंक्लाइंड मैनो, सॉरी नॉट मैनोमीटर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हम लोग देखते हैं इंक्लाइंड ये वेंचुरीमीटर, कि जब हमारा वेंचुरीमीटर इंक्लाइंड हो तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन देखते हैं इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर के लिए। ये आज का थर्ड क्वेश्चन, ये आज का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक है कि 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर वेंचुरी मीटर, इसको एक वर्टिकल पाइप कैरिंग वाटर में इंसर्ट किए हैं, ठीक है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अ डिफरेंशियल मर्क्यूरी मैनोमीटर कनेक्टेड टू द इनलेट एंड थ्रोट गिव्स अ रीडिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट अच्छा है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट अच्छा है, इसीलिए मैं ये दे रहा हूँ। और मैं चाह तो नहीं रहा था पूरा लिखना, बट क्वेश्चन का स्टेटमेंट अच्छा है, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट जल्दी से पूरा लिख ले रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट मैं पूरा जल्दी से लिख देता हूँ। ये भी आर के बंसल सर की बुक का है फ्रेंड्स क्वेश्चन, क्रेडिट गोज टू आर के बंसल सर फ्रेंड्स, ठीक है। इज इंसर्टेड इन अ वर्टिकल पाइप, इन अ वर्टिकल पाइप कैरिंग वाटर, इन अ वर्टिकल पाइप कैरिंग वाटर, ठीक है। जल्दी से, और जितना मैं लिखते जा रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोग लिख लो अपने नोट्स में अगर लिख रहे हो तो, या फिर मेरे से पहले जब तक मैं लिखूं तब तक बोल दो कि सर मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कोई जल्दी सॉल्व करो, ठीक है। फ्लोइंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, इसको अपवर्ड को अप डायरेक्शन कर दो, ठीक है, अपवर्ड को अप डायरेक्शन, थोड़ा शॉर्टकट लिखते हैं। एक डिफरेंशियल डिफरेंशियल मर्क्यूरी मैनोमीटर, डिफरेंशियल मर्क्यूरी मैनोमीटर connected to the inlet and throat, connected to the inlet and throat, ठीक है, connected to the inlet and throat, gives a reading of 20 centimeter, gives a reading of 20 centimeter, find the discharge, find the discharge। इसमें क्वेश्चन में CD दिया है, बट आई वोंट टेल यू CD। ये मान लो हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कन्वेंशनल टाइप समझ लो, ताकि उसमें CD ना दिया रहे, तो तुम अपना दिमाग लगाओ क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो हियर आई वेट फॉर, इट्स 8:27, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 मिनट में जल्दी से जल्दी ये सॉल्व करो, ये तो तुरंत 8:28 हो गया। सो 8:30 सॉल्व दिस क्वेश्चन एज फास्ट एज पॉसिबल फ्रेंड्स, सॉल्व दिस क्वेश्चन एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व दिस क्वेश्चन एज फास्ट एज पॉसिबल। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और आई गेस टाइम तब तक खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, आई गेस टाइम तब तक खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं शायद आप लोगों को CDCC वाला नेक्स्ट क्लास में चलो बता के, फिर पिटॉट ट्यूब है हमारा, पाइटेट स्टैटिक ट्यूब है, और फिर इसमें हम लोग, इसी में हम लोग देखेंगे लीनियर मोमेंटम इक्वेशन और एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। और एक दिन मैं लीनियर मोमेंटम पे, एक दिन एंगुलर मोमेंटम पे टॉपिक पढ़ा के, बहुत सारे क्वेश्चन करा के एक एक क्लास उन दोनों के लेके खत्म कर दूंगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे पाइप कैरिंग वाटर, और फिर हम लोग देखेंगे 8:28 फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत कम टाइम बचा है। 8:29, जल्दी करो फ्रेंड्स।
जल्दी करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन एज फास्ट एज पॉसिबल फ्रेंड्स. I will see your answer in the chats, friend. I will see your answer in the chats. Solve the question, friends. और फिर हमारा अभी थोड़ा थोड़ा ही चैप्टर बचा है, सब पे एक एक दो दो लेक्चर पे हमारा खत्म होते जाएगा फ्रेंड्स. अभी ज्यादा टॉपिक हमारा लेफ्ट नहीं है. बस अब हमारा टाइम खत्म होने वाला है, फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. मैं स्टार्ट कर देता हूँ. ज्यादा इजी सा ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स. बस यहाँ पे इस एक वर्ड का वो है, गेम है इस एक वर्ड का. ठीक है, इस एक वर्ड का गेम है 830. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स सॉल्यूशन. यहाँ पे बस एक ये वर्ड था कि 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का वेंचुरी मीटर यूज किया फ्रेंड्स. वी हैव यूज्ड 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर वेंचुरी मीटर. यानी स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन का ये कह रहा है कि अगर ये मैं ऐसे कनेक्ट करता हूं तो थ्रोट 15 सेंटीमीटर है, और ये जो मैक्सिमम ये वाला जो डाया है, जो पाइप के डायमीटर के इक्विवेलेंट है, वो है 30 सेंटीमीटर और कुछ नहीं है. बस ये 30/15 यही है. अब इसको ऐसा मत समझ लेना कि ये रेक्टेंगल है 13 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर. ठीक है, 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर यही बता रहा है. ठीक है, और फिर एक डिफरेंशियल मैनोमीटर का रीडिंग दिया है हमें 20 सेंटीमीटर, दैट इज स्मॉल एच. तो फिर हम कैपिटल एच निकालेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे और डिस्चार्ज निकाल लेंगे. सीडी नहीं दिया है तो अज्यूम सीडी एस. मैंने बताया वेंचुरी मीटर, अरे यार ये नीचे लिखा नहीं रहा है फ्रेंड्स. अगर सीडी नहीं दिया है तो वेंचुरी मीटर में अज्यूम सीडी इज इक्वल टू 0.98. ठीक है, वेंचुरी मीटर में सीडी नहीं देता है तो अज्यूम इट एज 0.98. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, Q इज इक्वल टू सी डी ए कैपिटल ए स्मॉल ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर रूट 2G कैपिटल एच. सी डी 0.98, कैपिटल ए हमारा है π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, स्मॉल ए है π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर, और एच है 20 सेंटीमीटर. एच इज 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर. तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया है फ्रेंड्स, जस्ट. बस डिफरेंस कहाँ ला दिया है, दो जगह. एक तो ये वर्टिकल पाइप, एक तो ये वर्टिकल पाइप. ठीक है फ्रेंड्स, वन इज दिस वर्टिकल पाइप और एक ये वेंचुरी मीटर में जो डायमेंशन दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए 30/15 सेंटीमीटर दिया. ठीक है, और मैंने यहाँ पे बताया है आप लोगों को फ्रेंड्स कि हम लोग इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किसी भी टाइप का वेंचुरी मीटर हो, हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, किसी भी टाइप का वेंचुरी मीटर हो, हमें सिंपली ये जो पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस जो हमें दिया है क्वेश्चन में वो निकाल लेंगे. स्मॉल एच, हमें क्वेश्चन में रीडिंग स्मॉल एच दिया हुआ है, तो हम लोग पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस G2/G1 - 1 इंटू एच करके निकाल लेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फॉर एनी थीटा है, यानी थीटा 0 डिग्री 90 डिग्री, तो क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी वर्टिकल. ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वर्टिकल के लिए. और अब उसमें सेम चीज हम लोग वही करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, क्योंकि सेम वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर. वो मैं शो कर दे रहा हूँ कैसे. ठीक है फ्रेंड्स, वो मैं शो कर दे रहा हूँ कैसे. कहाँ गया फ्रेंड्स, वेयर इज दैट. ये पेन कभी कभी स्टॉप कर जाता है फ्रेंड्स. हाँ ठीक है, इसमें कहाँ गया फिर. हाँ, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉरी ये थोड़ा सा पेन आज दिक्कत कर रहा है फ्रेंड. ये जो क्वेश्चन है ये वाला कि 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर सेम डेटा है, लिक्विड भी सेम मर्क्यूरी है, तो फिर उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. खाली डिफरेंस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, वहां वर्टिकल है, बट फ्लो सेम आएगा, चाहे हम हॉरिजॉन्टल रखें, इतने डिग्री पर रखें, इतने पर रखें, फ्लो सेम आएगा फ्रेंड्स. ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन भी इजी था.
बस वहां पे ये था कि वर्टिकल वेंचुरीमीटर कर दिया है, और दूसरा जो डेटा दिया है वो 30/15 सेंटीमीटर ऐसे करके दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, डेटा कैसे दे दिया है, 30/15 सेंटीमीटर करके। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऑरिफिस मीटर पे है, ठीक है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये आई गेस फोर्थ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर में। मैंने आपको बहुत क्वेश्चन लगवाए हैं फ्रेंड्स, हर दिन 3-3 4-4, ठीक है। एक ऑरिफिस मीटर है, एन ऑरिफिस मीटर विथ डाया with dia 10 centimeter is inserted in a pipe of 20 centimeter dia, ठीक है, in a pipe of 20 centimeter dia, the pressure gauges fitted upstream and downstream, एक मिनट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इसको हम लोग प्रॉपर कर लें, ठीक है। यहाँ पे करेंगे कि फिटेड अप, ये हमारा इरेजर ये रहा फ्रेंड्स, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे फिटेड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द ऑरिफिस मीटर gives readings of 19.62 and 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। CD दिया, इसके लिए CD दिया फ्रेंड्स हमारा CD 0.6, CD इज इक्वल टू 0.6, और क्वेश्चन में फिर फाइंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर, क्वेश्चन में है फाइंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है फ्रेंड्स, फाइंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर। तो मैं फिर से 2 मिनट का टाइम देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी कर लो फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं एल्बोमीटर, नोजल मीटर, इन पे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उतने बनते नहीं है, उन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे ऑरिफिस मीटर का एक क्वेश्चन करेंगे, और एक क्वेश्चन फिर कल करेंगे हम लोग, कल मतलब मंडे को, कि ये ऑरिफिस मीटर में CD, CC, CV का उसका कंसेप्ट समझ के फिर पिटआउट ट्यूब करके उस क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस 1 मिनट और बचा है, जल्दी सॉल्व करिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी सा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, जल्दी सॉल्व कीजिए। लेट्स सॉल्व इट एज फास्ट एज पॉसिबल। और ये डेटा देख लेना, यहाँ पे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है फ्रेंड्स, डेटा इज इन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, टाइम सब 2 मिनट खत्म। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, एन ऑरिफिस मीटर विथ डाया 10 सेंटीमीटर, तो ऑरिफिस मीटर की डाया A2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये ऑरिफिस मीटर है, ठीक है, A2 नहीं होगा इसलिए A होगा। जो A2 था हमने नोटेशन में A2 को लिया था ये वीना कॉन्ट्रैक्टा का डाया, वीना कॉन्ट्रैक्टा का, ठीक है। यहाँ पे A 10 सेंटीमीटर यानी ऑरिफिस मीटर का, ठीक है। और क्या है कि पाइप की डाया यानी कैपिटल A 20 सेंटीमीटर, कैपिटल A, या फिर हमने यहाँ पे A1 लिया था, ठीक है, A1 लिया था, ठीक है। और प्रेशर दिया है, ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो, हमें निकालना क्या है, डिस्चार्ज। वो क्या होता है, CD A1 A2 रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर
और A2 नहीं, हम यहाँ पे A लिखते हैं, जो कि वीना कॉन्ट्रैक्टर नहीं मेरा। किसका डायमीटर दिया है फ्रेंड्स, ये हमारा डाया दिया है ये ऑरिफिस मीटर का। तो A2 यहाँ पे A2 और इंटू रूट ओवर 2GH। तो CD क्वेश्चन में दिया है, और फिर से मैंने A2 ही लिख दिया, इसको A कर लो, दिस इज A, ठीक है। CD दिया है, A1 हम लोग निकाल लेंगे, एरिया स्मॉल ए निकाल लेंगे, ये डाया कर लो, ये D1 कर लो, और ये ऐसे D2, ठीक है, टर्म्स को समझो, ठीक है। ये निकाल लेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। H क्या होगा, उस H के लिए हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है 19.62 और 9.81, और हमें डेटम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम लोग सेम लेवल पे मान के चलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। डेटम का हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग सेम लेवल पे मान के चलेंगे। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, जो H है वो हो जाएगा P1 बाई गामा माइनस P2 बाई गामा, ठीक है। तो कितना है 19.62 माइनस 9.81, जो कि 9.81 न्यूटन बाई 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ऐसा ही आएगा, ठीक है। गामा क्या है फ्रेंड्स, क्या फ्लो कर रहा है, इंसर्टेड इन अ पाइप, फाइंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी वाटर फ्लो कर रहा है, व्हाट इज फ्लोइंग, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो 9.81 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये कैंसिल, ठीक है। ये न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, तो यहां से आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। स्मॉल ए हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 का स्क्वायर, और A1 क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। सो A1 और A कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, A1 और A 0.1 इंटू 0.1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 0.00785, ठीक है। और दूसरा है 0.2 इंटू 0.2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 0.03141, ठीक है। सो Q विल बी CD यानी 0.6, A1 इंटू A है हमारा A1 into A 0.00785, 0.00785 into 0.03141 by root over 0.03141 का स्क्वायर माइनस 0.00785 का होल स्क्वायर इंटू रूट 2, और हाइट ये वाला हमने 10 निकाला था, एंड दिस इज 9.81। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 0.00785 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका रूट ओवर ले लेंगे, इसका रूट ओवर ले लेंगे, और फिर इसका इन्वर्स कर देंगे, इसमें 0.6 और 0.00785 और 0.03141 और रूट 2 इंटू रूट 9.81 इंटू रूट ओवर 10, तो ये हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स 0.06812 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड वी कैन ऑफ कोर्स राइट दिस एज 68.12 लीटर पर सेकेंड, दिस इज Q, ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज Q, ठीक है, दिस इज Q। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना था फ्रेंड्स, सिंपली इसमें हमें, इसको ऊपर कर देते हैं, इसमें हमें बस ये डाया दे रखा था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, इसके क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, जो अगर तुम फंस सकते हो तो वो होता है CD CC CV और फिस मीटर के केस में, उसमें फंस सकते हो, उसका मैं क्वेश्चन करा के उसका कंसेप्ट बता दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, मंडे को। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, जो मैंने बताया प्रैक्टिस कर लेना और उसको पढ़ के आना, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में। और अगर किसी को कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, आज के क्लास में किसी को कोई भी डाउट लगाओ, तो प्लीज आस्क मी इन द चैट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है फ्रेंड्स। इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट, बी फील फ्री टू आस्क मी योर डाउट्स, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म करने से पहले, अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए फ्रेंड, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, गो एंड ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, देयर आई डेली अपलोड माय पीडीएफ, आई विल अपलोड द टुडेज क्लास पीडीएफ देयर ऑल्सो, ठीक है फ्रेंड्स। और मुझे फॉलो कीजिए उस पर, ठीक है। तो अभी आपके गेट में फ्रेंड्स, एक मिनट,
अभी गेट में आपके फ्रेंड्स सिर्फ 4 मंथ बाकी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 भी नहीं 3 मंथ्स, ठीक है। गेट में 3 मंथ्स बचे हैं फ्रेंड्स, तो पूरा एकदम अच्छे से पूरा ट्राई करिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, पूरा अच्छे से अपना ट्राई कीजिए। तो आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन, ठीक है फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कीजिए शेयर कीजिए जितने लोगों को, ताकि सब कोई पढ़ेंगे, सब मिलके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय सबको, हैव अ नाइस डे, एंड फिर से डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।